اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کے علمی تحریکی شہر دیوبند سے آ رہی ہے، جہاں پر عالم اسلام کا عظیم الشان دینی تعلیمی ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند کے نام سے۔ خبر ہے کہ گزشتہ کل نماز جمعہ کے دوران دیوبند میں پولیس انتظامیہ الرٹ رہی، کیونکہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے بعد اتر پردیش میں اور خاص طور سے دیوبند میں ماحول خراب ہے۔ خیر، لوگوں نے حسب معمول نماز جمعہ ادا کی۔ اتر پردیش کا ایک شیطان گستاخ رسول یتی نرسنگھنن کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے جانے سے شدید ناراض اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا مسلمانوں نے پورے ملک میں زبردست احتجاج کیا۔ یہ سلسلہ بدستور ابھی بھی جاری ہے، ہر دن مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کتے کو بھی گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا، اور ہمارے یہاں کا جو شیطان ہے رام گری مہاراج، اس کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ یعنی کھلے طور پر حکومت یہ بتا رہی ہے ہندوتوا ٹولے کو خوش کرتے ہوئے کہ دیکھو کوئی کچھ بھی کر لے، ہم کسی بھی سادھو سنت کو گرفتار نہیں کریں گے، یہ ہمارا راج ہے۔ پورے ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے، یعنی حکومت خود چاہتی ہے کہ مسلمان زیادہ جذبات میں آئے، غصہ ہو جائے، روڈ پر آئے، دنگے فساد ہو، پتھراؤ ہو، ماحول خراب ہو، تو اس کا فائدہ صرف اور صرف بی جے پی کو پہنچے گا۔ ناظرین، آج دسہرے کا دن ہے۔ مہاراشٹر کے ممبئی کا آزاد میدان اور شیواجی پارک، ان دونوں جگہ پر اب طاقت کا مظاہرہ ہوگا، شکتی پردرشن ہوگا۔ ایک طرف ادھو جی ٹھاکرے اور دوسری طرف ایک ناتھ شندے یوم تاسیس منائیں گے۔ ممبئی میں بالترتیب چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس اور دیوی وسرجن کے قریب دادر کے شیواجی پارک اور آزاد میدان میں سیاسی جماعتوں کے دسہرے کے اجتماع کے پیش نظر ممبئی پولیس پوری طرح تیار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شیواجی پارک میں شیو سینا یعنی ادھو ٹھاکرے کا یوم تاسیس، اور یوں سمجھیے کہ آزاد میدان میں شندے گروپ یوم تاسیس منا رہی ہے، لیکن وہ آزاد میدان میں منائیں گے، جس میں ایک جلسہ عام بھی ہوگا۔ اس میں بھی پورے مہاراشٹر سے بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ خیر، دسہرے کا دن تہوار کا دن ہے، لیکن سیاسی پارٹیوں کا شکتی پردرشن کا دن بھی ہے۔ ناظرین، اس وقت کیرلا اسمبلی کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کیرلا اسمبلی میں
नरेंद्र मोदी की एक जो नापाक स्कीम आ रही है, एक एक स्कीम उनकी मुल्क को तोड़ने वाली, तबाह करने वाली है। तो वो एक स्कीम आ रही है उनकी, एक मुल्क एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। इस नापाक मुहिम की ज़बरदस्त मुखालिफत, ज़बरदस्त विरोध हुआ। केरला असम्बली में इत्तेफाक राय से बिल के मुखालिफ, ये जो बिल लाया जा रहा है बीजेपी का, इत्तेफाक राय से इस नापाक बिल के मुखालिफ करारदाद मंजूर की गई। केरला असम्बली ने गुज़िश्ता 2 दिन यानी पहले यानी जुमेरात को मरकजी हुकूमत केंद्र सरकार की तरफ से रामनाथ कोविंद कमेटी की एक मुल्क एक इंतखाब के लिए की गई सिफारिशात पर एहतजाज दर्ज कराया। इसके अलावा ऐवान में इसके खिलाफ मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद भी मंजूर की गई। यानी गोया कि अब ये बताया जाने लगा है कि मोदी जी जैसे वक्फ एक्ट का नापाक बिल ला रहे थे जो मुल्क को तोड़ने वाला और एक समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसे ही ये मुहिम भी मोदी जी की वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी मुल्क को तोड़ने वाली है और जमहूरियत और सेकुलरिज्म को ख़त्म करने वाली है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर असर हाजिर के मिल्ली मसाइल बिलखुसूस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत और पैगम्बर इस्लाम की शान में बदजुबानी करने वाले दरीदा दहनों को आईन हिंद के तहत कैफ़र किरदार तक पहुँचाना, इसकी बाबत गौर खौस करने के लिए गुज़िश्ता कल बाद नमाज जुमा मिटिया महल जामे मस्जिद के फारूकिया बुक डिपो में यानी दिल्ली में अमायदीन बिल्लत की एक अहम नशिस्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत इतना हसास सेंसिटिव मसला है जिस पर हम खामोश नहीं रह सकते। और यह कहा गया कि हमें आईन हिंद के तहत, हमें संविधान के तहत मैदान अमल में उतरना होगा और गुस्ताखान रसूल को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना होगा। इस मौके पर रज़ा एकेडमी के बानी और चेयरमैन मौलाना अलहाज सईद नूरी साहब मौजूद थे। ऐसे ही मौलाना सैयद बाबर अशरफ साहब का छवी, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, मौलाना गुलाम हसन साहब, मौलाना सैयद कैसर, खालिद फिरदौसी, मौलाना कलीम अशरफी, सिकंदर भाई, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, मौलाना निसार, हाजी मोहम्मद नईम, मोहम्मद मदनी, मोहम्मद तलहा और लियाकत अली वगैरह इस मीटिंग में शरीक रहे। और तमाम लोगों ने साफ तौर से ये कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं और तौहीन रिसालत पर हम खामोश नहीं रह सकते। हमें इन तमाम गुस्ताखों को, शैतानों को आईन हिंद के तहत बाकायदा कैफ़र किरदार तक पहुँचाना होगा। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स जो हमारी एक बड़ी ताकत है, खबर आ रही कि इंडियन एयरफोर्स ने गुज़िश्ता कल नई मुंबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया, आजमाइशी तौर पर, ट्रायल के तौर पर अपने पहले तैयारे की लैंडिंग की, जिसका मुशाहिदा बहुत कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 से एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा, ऐसा वजीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया। नई मुंबई के एयरपोर्ट का बाज़ाब्ता आगाज से कबल रनवे की जांच के एक अहम हिस्से के तौर पर एयरबस 295C ट्रांसपोर्ट तैयारा और एक लड़ाका तैयारा समेत IAF तैयारी की लैंडिंग और टेक ऑफ शामिल थी, यानी ट्रायल किया गया और यह ट्रायल, ये लैंडिंग का मुशाहिदा इंतहाई कामयाब रहा और मार्च 2025 से एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, क्रिकेटर सिराज मोहम्मद सिराज अब DSP बन गए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि DGP जितेंद्र से मुलाकात करते हुए ज्वाइनिंग लेटर मोहम्मद सिराज के हवाले कर दिया गया। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने पुलिस के DSP की हैसियत से गुज़िश्ता कल DGP ऑफिस में अपने ओहदे का जायजा लिया। उन्होंने रियासती DGP जितेंद्र से मुलाकात करते हुए ज्वाइनिंग लेटर हवाले किया। इस मौके पर सिराज ने रियासती हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को जमीन और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस साल अगस्त में
जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर 600 मुरब्बा गज जमीन सिराज को अलाट करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए थे। हाल ही में सिराज को डीएसपी की पोस्ट भी दी गई है। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नफरतें फैलाने वाली पार्टी बीजेपी जम्मू कश्मीर से साफ हो गई। वहाँ की जनता ने 370 जैसा कानून लाकर या कलम लाकर या आर्टिकल लाकर जिस तरीके से कश्मीरियों का खून किया गया था बीजेपी के जरिए से, वहाँ की जनता ने बीजेपी को ज़बरदस्त अंदाज में फटका दिया, नकार दिया और वहां पर इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने जा रही है। खबर है कि गुज़िश्ता कल उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत का दावा पेश किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी सिन्हा से मुलाकात की और पार्टियों की हिमायत के खतूत लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए। हलफ बर्दारी 16 अक्टूबर को हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जुमा की रात तकरीबन 8 बजे श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने का दावा किया। एलजी से मुलाकात के बाद उमर ने कहा कि मैंने एलजी से मुलाकात की और कांग्रेस, सीपीआई एम, एएपी और आज़ाद उम्मीदवारों से मौसूल होने वाले हिमायत के खतूत हमने एलजी साहब को सौंप दिया और इंशाअल्लाह हलफ बर्दारी की मुहिम 16 अक्टूबर को हो सकती है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक था रतन टाटा जिसने गुज़िश्ता 2 दिन पहले दुनिया को टाटा बाय बाय कर दिया। रतन टाटा हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों पर छाए थे और छाए रहेंगे और यकीनन रतन टाटा को मुल्क हमेशा याद करेगा और याद रखेगा। खबर आ रही है कि अब रतन टाटा के जो सौतेले भाई है नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा के इंतकाल के बाद जानशीन के इंतखाब के लिए मुनक्किदा टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बोर्ड ने नोएल टाटा को इत्तेफाक राय से टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन मुंतखब कर लिया। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वो फिलहाल टाटा स्टील और वोल्टास समेत कई फेरिस्त बंद कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक महली मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट का मुस्तकिल ट्रस्टी मुकर्रर किया जा सकता है। महली टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन आजहानी साइरस मिस्त्री के कजिन हैं। नाज़रीन, दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने बड़ा हमला किया है नरेंद्र मोदी पर और ये कहा कि फ्री की रेवड़ी अमेरिका पहुंच गई। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला ने शेयर की ट्रंप की वीडियो, यानी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो शेयर की जिसमें ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो अमेरिका में बिजली के बिलों की शरह दाम कीमत निस्फ कर देंगे, आधी कर देंगे। तो इस पर केजरीवाल ने कहा कि अब फ्री की रेवड़ी अमेरिका भी पहुंच गई। वैसे हमारे नरेंद्र जी मोदी भी अमेरिका पहुंचे हैं और वहां पर जो बाइडन जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे से इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों की जानिब से मुफ्त और पुरकशिश स्कीमों के ऐलान पर हंगामा बरपा है, यानी फ्री की रेवड़ी। तो दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इस मामले में काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। ताहम अब केजरीवाल ने दावा किया है कि फ्री की रेवड़ी अब अमेरिका भी पहुंच गई है, क्योंकि अमेरिका में भी अब ऐसे ही ऐलान किए जा रहे हैं जैसे हमने किया था और हमने करके दिखाया भी है। तो अब फ्री की रेवड़ी अमेरिका में भी बंटने लगी है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के तलोजा जेल से बड़ी खबर आ रही है कि तलोजा जेल में 10 लाख रुपये की मंशियात सप्लाई का मामला सामने आया है। स्मगलिंग का मामला, यानी नशा आवर चीज़ों की स्मगलिंग, और इस इल्ज़ाम में यानी मंशियात स्मगल करने के इल्ज़ाम में एक
पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। बुध के रोज कैदियों के लिए जेल के अंदर 10.8 लाख रुपए की मंशियात स्मगल करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को पकड़ा गया। मुलजिम, जिसकी शनाख्त अनिल आसाराम जाधव के तौर पर हुई है, रात की ड्यूटी पर था और जेल के मेन गेट पर हिफाजती चेकिंग के दौरान उसके टिफिन बॉक्स से मंशियात बरामद हुई है। एक एहलकार ने बताया कि जाधव अंदर गांजा, चरस और एमडी लेकर जा रहा था। यानी आप समझ सकते हैं, एक्चुअली मैं ये खबर मैं इसलिए दे रहा हूं कि जेल के अंदर जब तक के खुद पुलिस वाले ना चाहे कोई जुर्म जेल के अंदर नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम यही है कि 70% जो हमारे करप्शन हो रहे हैं, इन 70% करप्शन में बाकायदा हुकूमत के नुमाइंदे, सरकारी गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद रहते हैं। जब तक कि सरकार के नुमाइंदे मौजूद ना हो, मुल्क में कोई करप्शन हो ही नहीं सकता। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।